السلام کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے مختصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حج کا ذکر ہے۔ غالباً تراکی سے پہلے کرائی جا چکی ہے۔ حاجی خوش نصیب پہنچ بھی چکے ہیں، کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ موضوع ہمارا حج نہیں ہے، لیکن حج سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں۔ گزشتہ جمعہ پھر اس سے پچھلے جمعہ تقریباً 2 سے 3 جمعہ ہم آپ کے سامنے وہ حقائق بیان کر رہے ہیں جو آج کل دنیا میں پائے جا رہے ہیں، جس کی ہمیں اصلاح کی اشد ضرورت ہے، اور اس اصلاح کے بغیر جو ہے وہ معاشرے کا درست ہونا، سنبھل جانا، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی کی ایک کڑی، اسی سے ملتی جھلی ایک جو ہے جھلک، جو کہہ لیجیے آج کے موضوع میں بھی شامل ہے۔ جس طرح میں نے حج کے چند الفاظ فمن حج البیت، جو اللہ کے گھر کا حج کرے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہاں حج کا ذکر، یہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں صبر اور عمل کا ذکر۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں رمضان کے روزوں کا ذکر۔ لا الہ الا اللہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، یہاں پر کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کا ذکر۔ محمد رسول اللہ قرآن مجید کی دوسرے مقام پر آیا ہے، یہاں کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کا ذکر۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آج بات آپ کو سمجھانی ہے۔ اس میں آپس میں لوگ تعلق سمجھ کر خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، جسے ہم کہتے ہیں توحید و رسالت۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ بہت کم وقت میں 15 منٹ ہی سمجھیں، 15 منٹ کے اندر مجھے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ پہلا رکن کلمہ طیبہ، صرف توحید نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے معاشرے میں پہلی غلطی یہ ہے کہ پہلا رکن پڑھایا جاتا ہے، پہلا توحید، ختم۔ یہ رکن کمپلیٹ نہیں ہے۔ رکن کے اندر آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رکن کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب رسالت ساتھ ملے۔ خالی توحید سے کچھ نہیں بنتا، خالی توحید سے کچھ نہیں بنتا، ذہن میں بٹھا لیں۔ جب تک رسالت توحید کے ساتھ نہیں ملے، رسالت ملے گی تب آپ کا ایک رکن، ایک فرض مکمل ہوگا۔ یہ پہلا فرض ہے اسلام کا، توحید و، بولیے بلند آواز سے، توحید و رسالت۔ دوسرا رکن نماز، اقیم الصلاۃ،
دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز. بتائیے کلمے کا، توحید و رسالت کا نماز سے کوئی اٹیچمنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی چیز اٹیچ ہو رہی ہے؟ وہ ایک الگ رکن ہے. اسلام میں داخل ہوئیے، کلمہ پڑھیے. کلمہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ زندگی میں پڑھ لیا، ختم. اس پہ قائم رہا، ختم. استقامت رہی، ختم. ایک مرتبہ پڑھ لیا، پکا مومن ہو گیا. اگر وہ اس پر استقامت پکڑ گیا، قائم رہ گیا تو اس سے نماز کا کوئی تعلق. اب نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے، کلمے میں اثر نہیں پڑے گا. کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کتنے بے نمازی پھرتے ہیں، کیا کافر ہو گئے؟ کلمے پر اثر نہیں پڑ رہا. اچھا ہے. دوسرا رکن ہم نے بتایا نماز. اسی طرح یہ آتی مثلاً آتو زکات، اور زکات کو ادا کرو. آتو زکات، زکات تیسرا. اگر کوئی شخص پہلے یہ دیکھیے نماز اور زکات کا کوئی تعلق ہے. اگر ایک شخص زکات نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے، ہو جائے گی؟ کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی زکات ادا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو زکات ادا ہو جائے گی، نماز بھی ادا ہو جائے گی. ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. پھر کیا ہے؟ فمن حج البیت، اللہ کے گھر کا حج. روزہ لیتے ہیں پہلے، حج کے بعد میں. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے، ایک تو یہاں غلطی کھاتے ہیں لوگ اس معاملے میں، ایک حج والے معاملے، نہ کلمہ نظر آتا ہے وہاں غلطی نہیں کھاتے، نہ نماز نظر آتی وہاں غلطی نہیں کھاتے. رمضان کے روزے اور حج، یہاں آ کر زکات میں غلطی نہیں کھاتے. لیکن یہ دو رکن ہے، ایک روزہ، ایک ہے حج. یہاں لوگ غلطی کھاتے جس کی اصلاح ہم نے کر دی. یہاں مائنڈ خراب ہو چکا ہے. خراب ہو نہیں چکا، وہی بات یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر پلاننگ بنائی کہ مسلمانوں میں ایسی باتیں رائج کی جائے جس سے یہ خود بخود خراب ہو جائے. اور وہ ہو گئے خراب. دماغ خراب ہو گئے، ذہن خراب ہو گئے، دل خراب ہو گئے، لینگویج خراب ہو گئی، گفتگو خراب ہو گئی. گفتگو بھی اچھی نہیں کرتے، گالیاں دیتے.
यार मैं तो नमाज पढ़ता ही नहीं हूँ, क्या फायदा मेरा रोजा? वो छोड़ेगा, वो तो गुनाहगार हुआ, तुम भी गुनाहगार हुए। तुमने लेकिन उसको जो है फर्ज छुड़वाया उससे। इसी तरह अब आए मेरे असल हज का, क्योंकि महीना चल रहा है, अब आइए हज का कलमे से कोई ताल्लुक, हज का रोजे से कोई ताल्लुक, हज का नमाज से कोई ताल्लुक, ज़कात से कोई ताल्लुक। अब यहाँ क्या गलती क्या करते हैं हम? शैतान ने यहूदी और ईसाइयों के साथ मिलकर जो गलत प्लानिंग बना के मुसलमानों के ज़हन में एक बात डाली, वो आप अभी एक्सेप्ट करेंगे। वो ये, अगर कोई शख्स इमाम काबा को जानता हो, उसकी शख्सियत को जानता हो, उसकी पर्सनैलिटी से वाकिफ हो, उसके ज़ाहिर बातिन को जानता हो, उससे कांटेक्ट हो, उसे पता है कि इमाम काबा कैसा है। वो कहता है मैं इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैंने इसकी इमाम काबा की बहुत सारी गलतियां देखी। ठीक है, इसकी फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ इमाम हूँ इस मस्जिद का, मुसल्ले पे खड़ा होता, जो कॉन्सेप्ट गलत बना हुआ उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इमाम हूँ, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख कर कहिए, मैं मुसल्ले पर मिंबर रसूल पर बैठकर आपको गाली दे देता हूँ, आपके वालिद को गाली दे देता हूँ, आपकी वालदा को गाली दे देता हूँ। ईमानदारी से बताएं, सच, हाथ खड़ा करके आप मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे? डरना नहीं है, हाथ खड़ा करें, कौन तो नमाज पीछे नहीं पढ़ेगा? जरा कैमरे में दिखाएं जरा हाथ, ताकि लोगों को समझ आए ये बात। हाथ खड़ा रखें, देखिए जरा, ये कैमरे में ये नजर आएगी ना कि ये देखिए क्यों आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे? इसलिए कि मैंने आपके बाप को गाली दी है, मैंने आपकी वालिदा मोहतरमा को गाली दी, फिर मैंने एक गाली दी, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? अरे भी इमाम है, चाहे मुझे आप कितना ही लाइक करते हो, चाहे आप मेरी लैंग्वेज से, मेरे टॉक से कितने ही सेटिस्फाई हो, लेकिन अगर मैंने गाली दे दी तो आप फौरन नहीं, इमाम यार मैं तो बड़ा अच्छा समझता था, ये तो इतना प्यारा मानते थे, ये तो समझाते थे हमें, तो ये गाली मिंबर रसूल पर, इमामत के मुसल्ले पर गाली दे दी, और वो भी गाली मेरे बाप को, मेरी माँ को। नहीं पढ़ रहे ना नमाज। अब एक शख्स जानता है कि इमाम काबा ने गाली दी, एक शख्स जानता है, आप नहीं जानते तो क्या हुआ? जो शख्स जान रहा है कि इमाम काबा ने गाली दी, और गाली आपके बाप को नहीं दी, गाली आपकी मदर मुहतरम को नहीं दी, गाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। फिर आप दिल पर हाथ रख के बताएं, आपके माँ को गाली इमाम दे रहा है, बाप को गाली दे रहा है, आप उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे। खाना काबा का इमाम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे तो आपका दिल कैसे गवारा कर जाएगा नमाज पढ़ने? करेगा? लेकिन वहां पर लोग अब बात क्या करते हैं, अब असल पहलू की तरफ। लेकिन मैं खाना काबा के इमाम को कुछ नहीं कह रहा, कभी किसी के जहन में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा हो, मैं उस शख्स की बात बता रहा हूँ जो शख्स इमाम काबा को जानता है, जो उससे लिंक रखता है, जो उससे कॉन्टेक्ट, जिसका उससे कॉन्टेक्ट है, जो उसके जाहिर और बातिन को जानता है, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। वो शख्स कहता है मैं तो हज पर जा रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा इमाम काबा, मैं अपनी नमाज खुद पढ़ूंगा। तो आप पता क्या कहते हैं उसको? तुम्हारा हज कैसे होगा? तुम जब इमाम के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ोगे तुम्हारा हज कैसे होगा? मुझे बताइए, हज का नमाज से क्या ताल्लुक है? हज एक अलग रुकन है, हज नाम किस चीज का है? तवाफ कीजिए, वो किसी इमाम के पीछे कर रहे हैं। हज नाम है सफा मरवा पर दौड़िए, किसी इमाम के पीछे दौड़ रहे हैं। हज नाम है ज़मज़म पीने का, किसी इमाम के पीछे खड़े होकर पी रहे हैं। हज नाम है हजरे अस्वद को चूमने का, तो किसी इमाम के पीछे खड़े होकर चूम रहे हैं, किसी इमाम की इब्तिदा में चूम रहे हैं। हज नाम है मकाम इब्राहिम पर जुर्माना अदा करने का, किसी इमाम के पीछे जुर्माना अदा कर रहे हैं आप। हज नाम है इरफात में ठहरने का, तो किसी इमाम के पीछे जाके ठहर रहे हैं। सोचिए, हज नाम है मीना में पहुंचने का, तो किसी इमाम के पीछे पहुंच रहे हैं वहां।
इब्तिदा की हुई है किसी की, हज नाम है शैतान को कंकरियां मारने का, तो कंकरियां किसी इमाम के पीछे खड़े होकर मार रहे हैं। तो ये आपने कहां से कह दिया कि हज तुम अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो हज ही नहीं होगा? हज का नमाज से क्या ताल्लुक? ये कॉन्सेप्ट अपने जहनों से निकाल दे। हज का फलीसली तौर पर, जाती तौर पर, बहैसियत एक अपनी ताकत के, वो खुद एक फर्ज है। हज की अपनी जो है वैल्यू है, और वैल्यू फर्ज की है। जिस तरह नमाज अलग फर्ज है, रोजा अलग फर्ज है, ज़कात अलग फर्ज है, कलमा तय्यबा तौहीद व रिसालत अलग फर्ज है, इसी तरह हज अलग फर्ज है, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। तो आपने कैसे कह दिया कि हज का मुबारक महीना आने वाला है, तो अभी आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। कोई हाजी हज पर जाएगा, उसको जानता होगा पर्सनली तौर पर कि वहां का इमाम कैसा है, और वो कहेगा मैं नमाज नहीं पढ़ता है खाना काबा के इमाम के पीछे, तो फिर आप यूं कहें कि जब तुम वहां नमाज ही नहीं पढ़ोगे तुम्हारा हज कैसे होगा? ये गलत, बिल्कुल गलत। हज इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का नाम हज नहीं होता। हज के अपने रुकन है। नमाज का रुकन कयाम है, रुकू है, कौमा है, जलसा है, सजदे हैं, अत्तहियात में बैठना तशहुद है, खुरूज बिस्सो नहीं है। ये नमाज के अपने फर्ज हैं, अपने वाजिबात हैं, अपने रुकन है नमाज के। इसी तरह हज के अपने रुकन है, वो सारे मैंने गिनवाए हैं। तवाफ करना, मुल्तज़म से लिपटना, हजर अस्वद को चूमना, उसके अपने अलग फर्ज है, वो है रुकन। तो वो रुकन किसी के पीछे अदा नहीं होते, उसके नमाज का कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि मैं मिंबर रसूल पर बैठ के इतनी बड़ी बात कहता हूं, अगर कोई शख्स ये सिर्फ समझाने के लिए कभी कोई दिल पर ले जाए, दिल पर नहीं लेना, समझाने के लिए अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता ही नहीं है, हज कराता है, हज पे जाके नमाज ही नहीं पढ़ता, क्या ख्याल है? फर्ज अदा होगा या नहीं होगा? होगा। नमाज का उससे क्या ताल्लुक? हाँ, ये अब अलग एक बात बताऊंगा आपको, वो ये कि अगर पांचों रुकन अदा किए जाए, कलमे को दिल में रख के नमाज पढ़ी जाए, और नमाज को अदा करते हुए ज़कात दी जाए, और ज़कात अदा करके रोजे रखे जाएं, और रोजे रखकर हज पर जाया जाए। मेरी बात समझ गए? तो सोने पर सुहागा है, फिर अमल का मजा आएगा, फिर चाशनी आएगी, फिर दिल को सरूर आएगा, फिर कैफो सरूर मिलेगा, फिर खुशियों खुजूर मिलेगा। यही नहीं, दुनिया की हर शय मिलेगी। यही नहीं, कायनात मिल जाएगी। यही नहीं, जमीन मिल जाएगी। यही नहीं, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी। यही नहीं, खुद खुदा मिल जाएगा। ये अलग चीज है कि सारी चीजें अदा की जाए, लेकिन ये कहा जाए क्या फायदा तुम्हारा हज पे जाने का, तुम वहां नमाज तो पढ़ते ही। भाई वो नमाज नहीं पढ़ता, उसका अपना खेल है, आपको क्या प्रॉब्लम? आपको क्या प्रॉब्लम? आप कम से कम उससे बैठिए, उसके पास उससे पूछे, भैया आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां जाकर, हज करेंगे क्यों? फिर वो आपको बताएगा क्यों। आपने पूछा नहीं, तहकीक नहीं की, और आपने फौरन जो है ना अपनी तरफ से फतवा दे दिया। बताओ आप ये लोग ऐसी बातें ना किया करें जिसकी आपके पास तस्दीक ना हो। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जाहिल बेइल्म लोग अपनी तरफ से कुर्ब क़यामत में फतवे दिया करें। ये आपका फतवा है जो कहीं नहीं मिलता, किसी आलिम ने नहीं लिखा कि हज का नमाज से कोई ताल्लुक हो। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसका हज ही नहीं होगा, दिखाएं किसी ने लिखा आलिम नहीं। तो आप कैसे कहते हैं? आप ही कहते हैं ना, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं मेरी कि लोग ये बात कहते हैं क्या फायदा तुम्हारा हज पे जाने का जब तुम नमाज ही नहीं पढ़ोगे? तो ये बात सुनी आपने, और डंके की चोट पे कई बार सुनी होगी। तो ये जहन अपना बना ले। आज का हमारा इस्लाही पहलू ये है कि सुनी सुनाई पर यकीन नहीं करें, अपनी तरफ से फतवा जारी ना करें, और अगर कोई शख्स कोई एक अनहोनी बात जो आपका दिल नहीं मान रहा, नहीं तस्लीम कर रहा, तो आप उसको बिठाएं, पूछिए उससे कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे। अगर वो डिटेल बता दे तो ठीक, और ना बताए तो
पास तशरीफ लाइए, तो हो सकता है मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं, मैं बताऊंगा वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता। ये कन्फर्म है कि सऊदीया में नजदी हुकूमत है, कन्फर्म नहीं। ये भी आप जानते हैं कि नजदियत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस है, आज से 1400 साल पहले इसकी पेशन गोई की थी नाम लेकर कि मैं अहले नजद के लिए दुआ नहीं करूंगा, ये फितना है। और इस वक्त पूरे सऊदी अरब में नजद की हुकूमत है। किसकी? नजद की, कंट्रोल नजद का, इमाम नजद का। और नजद कौन है? जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को गिराने की कोशिश की थी। जो दब गए थे, सारी जमीन खुली थी, सब पूरी फौज नीचे दब गई थी जो गिराने आए थे, जिन्होंने सहाबा इकराम के मज़ारात को तोड़ दिया। जन्नत मुअल्ला, जन्नतुल बकी में बाकायदा गुंबद बने हुए थे। खदीजा तुल कुबरा का वाइट गुंबद बना हुआ था, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुंबद बना हुआ था, और सहाबा कबीर सहाबा इकराम के मज़ारात बने हुए थे, गुंबद कुब्बा बना हुआ था। जो इस नजदी हुकूमत ने बिल्डोजर चलाकर जूतों के साथ रोका है सहाबा की कब्रों, कैसे नमाज पढ़ लें? ये गलत टॉपिक है। असल चीज क्या है? ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये कि आप जो बोल रहे हैं कि क्या फायदा आपका हज करने का, आपका हज होगा ही नहीं कि नमाज तो पढ़ेंगे नहीं, ये टॉपिक है मेरा। तो भाई ये गलत बात है कि नमाज से हज का कोई ताल्लुक हो, लिहाजा हज अदा कीजिए। नमाज आप नहीं पढ़ते, उसके पीछे किसी के पीछे लो, ठीक है। कितने इमाम ऐसे होते हैं उसके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ते। कोई ऐसा भी होगा जो मेरे पीछे भी ना पढ़ता हो सकता है, अगरचे कि मुझे इल्म तो नहीं है इसका, लेकिन हो सकता है। भाई थोड़ी है, मैं कोई बड़ी जिम्मा थोड़ी हूँ। हो सकता है कोई मुझसे सेटिस्फाई ना हो सकता है आज का बयान सुनकर ही कोई समझे नहीं भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, इमाम साहब ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया, हो सकता है। तो नो प्रॉब्लम। किसी ने नेक, शेर सुनिए, किसी ने नेक किसी ने बद जाना मुझे, ये सबके लिए। किसी ने नेक किसी ने बद जाना मुझे, जितना जिसका दर्द था उतना उसने पहचाना मुझे। बस ये समझ लीजिए, अपनी तरफ से कोई दीन ना बनाए, अपनी तरफ से कोई इस्लाम ना बनाए, ये नहीं करते। अब रोजे रमजान के महीने में मैंने खुद सुनी है ये बात, ये रोजा रख रहा है नमाज तो पढ़ते नहीं, क्या फायदा रोजा रखने का? गलत। रोजा अलग फर्ज है, वो अदा हो रहा है, उससे नमाज का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, लेकिन नमाज पढ़ेगा तो रोजे की चाशनी मिलेगी, जरूर मिलेगा, नमाज में भी कैफ आएगा। यही हाल हज का है। इन चीजों को समझ लीजिए, अपने ध्यान को चेंज कीजिए। अब तब्दीली की जरूरत है। असल दीन को समझ लेना तब्दीली है। जो दीन को समझ जाए उसके अंदर असल तब्दीली आई है, जो दीन पर चल पड़े उसके अंदर असल तब्दीली आई है, जो हर बात को कबूल कर ले उसके अंदर तब्दीली आई है। इस चीज को आप तब्दील कीजिए, अपने जहन को तब्दील कीजिए, अपने माइंड को तब्दील कीजिए, और अपनी तरफ से इस्लाम के अंदर कोई चीज मत जोड़िए, अपनी तरफ से कोई बनावट ना बनाइए। आपको कोई चीज का मसला है तो उलमाए किराम मुफ्तियान उज़्ज़ाम हमारे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तादाद में पूछिए, तहकीकात कीजिए, दलाइल लीजिए। और मेरी इसी बात की दलील भी दी आपको, एक ही दलील दी, वो भी जो है मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल बना के दी कि मैं अगर आपके गाली दे दूं तो आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वो इमाम काबा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते तो हम कैसे नमाज पढ़ लेंगे उसके पीछे? हम नहीं पढ़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये मैंने सारी एग्जाम्पल दिए, लेकिन दलाइल चाहिए तो आए मेरे पास दलाइल है कुरान और हदीस से बाकायदा। उमर फारूक ने ऐसे इमाम की, आपको एक दलील तो दे दूं चलो या ध्यानी के लिए, टाइम तो हो गया। एक शख्स हर नमाज में फजर के बाद, फजर की नमाज में ये पढ़ा करता था आबसा व तवल्ला, ये सूरत पढ़ा। कौन सी? आबसा व तवल्ला। इस सूरत में क्या है? इस सूरत में यहाँ पर ये है तेरी चढ़ाई भूख है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को डांटा है प्यार से। मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, ये लोग जो लोग हजूर की शान में गुस्ताखी बेअदबी करते हैं, जो हजूर के मर्तबे को नहीं पहचानते, वो तो कहते हैं यहाँ अल्लाह ताला ने हजूर अलैहि सल्लम को डांट पिलाई, ऐसे ही बातें करते हैं। अब मेरे अल्फाज तो ये है कि अल्लाह ताला ने प्यार और मोहब्बत से
اپنے محبوب کو یہاں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، لیکن پیار محبت ہے. جیسے باپ اپنے بچے کو ڈانٹے گا تو کیا ہے، دشمنی میں ڈانٹے گا؟ پیار سے ڈانٹے گا نا. اللہ نے اپنے محبوب کو پیار سے ڈانٹ ڈپٹ کی. وہ شخص روزانہ فجر کی نماز میں یہی تلاوت کرتا جس میں اللہ نے اپنے نبی کو پیار سے ڈانٹا. عمر فاروق کا دور تھا، خلیفہ تھے. اللہ کرے آج کوئی خلیفہ عمر فاروق جیسا آ جائے، سب کی گردنیں اڑا کے رکھتے. آئے کوئی عمر فاروق جیسا، اللہ ہمیں کوئی ایسا کہا کرتے. عمر فاروق کو کہا گیا امیر المومنین فلاں امام ہر نماز میں یہی تلاوت کرتا ہے، ہر نماز میں ابا اللہ پڑھتا ہے. کہا اچھا، کنسر میں 2 گواہ لے کر آؤ. 2 نمازی لائے. ہاں بھائی کرتا ہے، جی کرتا، ہاں جی کرتا ہے، جی کرتا ہے. آپ نے فرمایا چل. یہاں پہ تلوار لگی ہوئی تھی، گئے امام صاحب کے پاس. امام صاحب سے جا کر پوچھا کیا آپ ہر روز فجر کی نماز میں ابسا وتولا پڑھتے ہیں؟ امام نے کہا جی. آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے انتظار کیا کہ کچھ اس کو بولنے کا موقع دیا، کچھ نہیں. آپ نے تلوار میان سے باہر نکالی اور اس کی گردن تن کو سر کو تن سے جدا کر دیا. صحابہ نے مجھے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اس کا بار بار یہ پڑھنا جس میں میرے نبی کی کو اللہ نے ڈانٹا ہے پیار سے. یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کے دل میں میرے نبی کا بغض ہے، اس کے دل میں میرے نبی کی دشمنی ہے، اس کے دل میں میرے نبی سے محبت نہیں ہے، جبھی تو یہ پڑھ رہا ہے بار بار. اس کی نفرت کی وجہ سے، نبی سے بغض کی وجہ سے. حالانکہ قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، امام ہے، لیکن عمر فاروق نے فیصلہ سنا دیا کہ اس سے گستاخیت کی بو آ رہی تھی. ارے بو آنے والے کی گردن اڑا دی، جو گستاخی کرتا اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھتی. پر اللہ تعالیٰ ہمیں